ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، امت مسلمہ کے عظیم لیڈرز کو اگر دیکھا جائے تو اس میں صحابہ کرام کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں آپ کو ترک قبائل ہر جگہ نظر آئیں گے۔ عثمان غازی کے بعد خلافت عثمانیہ کو برقرار رکھنا اور یورپ تک فتوحات کا سلسلہ پہنچانا ان عظیم لیڈرز کی بہادری، دلیری اور بے شبہ قربانیوں کی بابت ہی ممکن ہوا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ یورپ اس وقت بھی اتنا ہی پاورفل تھا جتنا کہ آج ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کے بارے میں بتائیں گے کہ انہوں نے اس وقت کے انتہائی مشکل ترین شہر قسطنطنیہ کو کس طرح سے فتح کیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ سلطان محمد فاتح جیسے عظیم لیڈر نے رومیوں کو ایسی شکست دی کہ شکست خوردہ روم دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکا۔ اس عظیم لیڈر جس کا نام سلطان محمد فاتح ہے، اور سلطان محمد فاتح کو فاتح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ قسطنطنیہ کی آزادی کا مطلب آج کے دور کے اسرائیل سے بیت المقدس کو آزاد کرانے کے برابر تھا۔ ناظرین، آج ہم فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح کی تاریخ اور جنگ سلیٹسیز پر روشنی ڈالیں گے اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مشہور اور مشکل ترین شہر جس کو فتح کرنا ناممکن تھا، مسلمانوں نے سلطان محمد فاتح کی قیادت میں کیسے فتح کر لیا، کیونکہ یہ ایک تاریخی واقعات پر مشتمل سچی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے جو کہ مسلمانوں کو آج بھی اپنے اسلاف کی بہادری اور جرأت مندی کی یاد دلاتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے اسلام کی فتوحات کے لیے کیا کیا حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ ناظرین کرام، قسطنطنیہ شہر یعنی آج کا استنبول اس وقت کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ ارطغرل غازی کی اولاد جو کہ سلطنت عثمانیہ قائم کر کے مسلمانوں کی فتوحات کو دور دراز پھیلانے میں مصروف تھی، انہوں نے ابھی تک یورپ کی طرف قدم نہیں بڑھائے تھے کیونکہ یورپ کا دروازہ یہی شہر قسطنطنیہ تھا، لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس شہر کی ڈیفنس اور سیکیورٹی سسٹم بہت ہی مضبوط تھے۔ اس کے ایک طرف خشکی اور باقی تین اطراف پہاڑ اور سمندر ہونے کی وجہ سے انتہائی مشکلات حائل تھی۔ کئی دفعہ اس شہر کا محاصرہ کیا گیا اور کئی دفعہ لشکر کشی کی گئی، مگر ہر دفعہ اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا کر وہ لشکر واپس چلے گئے۔ قسطنطنیہ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہی نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لوگے۔ وہ امیر بھی کیا باکمال ہوگا، وہ لشکر بھی کیا باکمال ہوگا۔ یعنی فاتح قسطنطنیہ سلطان محمد فاتح نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشین گوئی کی روشنی میں سب سے پہلا قدم جو اٹھانے کا فیصلہ کیا وہ تھا قسطنطنیہ کی فتح، کیونکہ اس بارے میں
मुबारक पेशीन गोई कर दी गई थी। तारीख में कुस्तुनतुनिया पर तकरीबन 24 मरतबा हमला किया गया, लेकिन कुस्तुनतुनिया को कोई भी लश्कर फतह ना कर सका, और सबसे आखिरी हमला मुसलमानों के अजीम सिपहसालार सुल्तान मोहम्मद फातिह ने किया और उसने ये फतह हासिल कर ली। दरअसल सुल्तान मोहम्मद ने तख्त नशीन होते ही कुस्तुनतुनिया पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि उसके मद्देनज़र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई और बशारत थी, और ये सुल्तान का मकसद बन चुका था। सुल्तान मोहम्मद ने पहले दीगर तमाम दुश्मनों से ख़तरा ख़त्म किया। दरअसल सुल्तान मोहम्मद के दो बड़े दुश्मन और कंपटीटर थे, जो कि एक करमानिया और दूसरा होनिया था, जिनके साथ सुल्तान ने एक मुआहदे के ज़रिए सुलह कर ली। जो सुल्तान मोहम्मद को इत्मीनान हो गया कि वो सुकून से कुस्तुनतुनिया पर तवज्जो दे सकेगा। नाज़रीन इकराम, पहला काम सुल्तान मोहम्मद ने ये किया कि कुस्तुनतुनिया से तकरीबन 5 मील के फासले पर एक किला तमीर करवाना शुरू कर दिया। इस किला की तामीर के दौरान तुर्कों की कई लड़ाइयाँ कुस्तुनतुनिया के सिपाहियों के साथ हुईं, लेकिन ये इस किला की तामीर को ना रोक सके। इस तरह ये किला 1452 ईस्वी के मौसम सरमा से पहले तैयार हो गया। बासफोर्स, जो कि कुस्तुनतुनिया का बहरी रास्ता था, अब उस्मानियों के कब्ज़ा में था। कोई बहरी जहाज़ सुल्तान मोहम्मद की इजाज़त के बगैर उधर से ना गुज़र सकता था, और दुश्मन को माली तौर पर गैर मुस्तहकम करने का यही वाहिद रास्ता था, और सुल्तान ने अपने सिपाही इस रास्ता पर मुकर्रर कर दिए थे। अब सुल्तान मोहम्मद ने बाकी तैयारियों पर तवज्जो दी। अदरना के मकाम पर सुल्तान ने 1.5 लाख फ़ौज इकट्ठी की, लेकिन सिर्फ फ़ौज की तादाद से ही ये शहर फतह ना हो सकता था, बल्कि इसके लिए एक ऐसी हिकमत अमली की ज़रूरत थी जो दुश्मनों को कमज़ोर कर सके। दरअसल ये शहर मुसल्लस नुमा था, जिसके दो अतराफ में समुंदर था, और बड़ी यानी ज़मीनी अफवाज सिर्फ एक तरफ से हमला कर सकती थी, लेकिन ये हिस्सा बहुत मजबूत था। ये के बाद दीगरे 3 मजबूत दीवारें इस हिस्सा की हिफाजत के लिए तामीर की गई थी। अंदरूनी 2 दीवारों को, जो कि इंतहाई मजबूत थी, हर दीवार का दरमियानी फासला 60 फीट का था, जिसको पार करना आसान ना था। दूसरी और तीसरी दीवार के दरमियान 100 फुट गहरी खंदक भी थी। ये दीवारें 5वीं सदी ईस्वी में शहंशाह थियोडोरस ने बनवाई थी, जो अब तक तमाम हमले नाकाम कर चुकी थी। तो नाज़रीन इकराम, कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए ज़रूरी था कि इन दीवारों पर तसलसल के साथ तोपों के ज़रिए गोलाबारी की जाए। अगरचे तोपों का इस्तेमाल इस वक्त तुर्क कर रहे थे, लेकिन सुल्तान मोहम्मद ने पुरानी तोपों को नाकाम करार देते हुए नई तोपें बनवाईं। अरबान नामी एक ईसाई इंजीनियर इस वक्त बाज़ेंतीनियों की मुलाजमत छोड़कर सुल्तान मोहम्मद के पास आ गया था। उसने एक बहुत बड़ी और शानदार तोप बनाई। इसके गोले का कुतर 2.5 फीट था। इसके अलावा इसने छोटी छोटी बहुत सी तोपें बना कर दी जो तेज़ी से गोले बरसा सकती थीं। जब तमाम तैयारियां मुकम्मल हुईं तो 6 अप्रैल 1453 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया।
सुल्तान मोहम्मद जो कि सल्तनत उस्मानिया के उस्मान गाजी का पोता था, वो भी उस्मान और अपने परदादा अर्तुगरुल की तरह बहादुर और जरी शख्स था। उस्मानी अफवाज दीवारों के साथ टकराती रही और दीवार पर चढ़ने की हर मुमकिन कोशिश करती रही और किला का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिशों में बेशुमार मुसलमान फौजी शहीद हुए, मगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिला। कई मरतबा वज़ीरों और मशीरों ने मशवरा दिया कि सुल्तान आप पीछे आ जाएं, ये किला फतह करना नामुमकिन है। लेकिन मुसलमानों का ये अजीम सुल्तान, जो इस वक्त मैदान में सिपहसालार का किरदार भी अदा कर रहा था, इस्तकामत का पहाड़ बनकर दुश्मनों का मुकाबला करता रहा। समुंदर के पानियों में भी झड़पों का सिलसिला जारी रहा। 29 मई 1453 ईस्वी में जब मुहासरे को 2 माह गुजर चुके थे, सुल्तान मोहम्मद और उसकी फ़ौज ने रात इबादत और दुआ में गुजारने के बाद नमाज फजर अदा की। उस्मानी सुल्तान मोहम्मद अफवाज के सिपहसालार के तौर पर अगले मोर्चों पर पहुंच गए और किला पर तोपों की शदीद गोलाबारी शुरू करवा दी, जिस वजह से किला की दीवार में शगाफ पड़ गया। जहां शगाफ पड़ा वहां दोनों फौजों के दरमियान घुमसान का रन पड़ा, यानी शदीद जंग हुई। सुल्तान मोहम्मद अज़्म हौसला के पहाड़ थे। उन्होंने खुद कमान संभाल कर शदीद और ताज़ा दम हमला करवा दिया। उधर रोमी भी बड़ी बेजिगरी से लड़े, मगर क्योंकि सुल्तान जो खुद अज़म और बहादुरी की जिंदा मिसाल थे, तमाम हमलों को खुद लीड कर रहे थे, मगर इससे कुछ खास फ़ायदा ना हुआ। फिर सुल्तान तलवार लेकर कुस्तुनतुनिया की दीवार के करीब पहुंचा। इनको अफवाज ने बड़ा मना किया कि वहाँ शदीद ख़तरा है, मगर इसके बावजूद अपनी सिपहसालारी का हक सुल्तान ने बखूबी अदा किया। लड़ाई के दौरान लाखों फौजियों की मौजूदगी में किला के गिर्द घूमना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, मगर सुल्तान मोहम्मद भी बहादुरी की आला मिसाल था। लिहाजा सुल्तान मोहम्मद ने तमाम शहर का जायज़ा लेकर एक कमज़ोर जगह तलाश कर ली, जहाँ से तोपची बआसानी रास्ता बना सकते थे, और आखिरकार सुल्तान ने तोपों से हमला करवाकर दीवार से गुजरने का रास्ता बना लिया और अपनी सिपाह के साथ किला के अंदर दाखिल हो गए। तमाम उस्मानी फ़ौज भी सुल्तान मोहम्मद की पैरवी में किला के अंदर दाखिल होने लगी। दीवार पर हसन, जो कि शाही दस्ता का कमांडर था, ने उस्मानी परचम लहरा दिया। दुश्वार मरहला सिर्फ दीवार को पार करना था, बाकी उस्मानी अफवाज से दुनिया लरजती थी, क्योंकि इनकी बहादुरी की धाक हर तरफ बैठी हुई थी। अंदर जाकर रोमियों से ख़तरनाक लड़ाई के बाद सुल्तान मोहम्मद ने अपने आप को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मसदा करार दिया। 29 मई 1453 को ये शहर फतह करके सुल्तान मोहम्मद ने दुनिया को दिखाया कि मैं हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अदना सा पैरोकार हूँ। शहर में दाखिल होते ही अपना सर अल्लाह पाक की बारगाह में शुक्राने के तौर पर झुका दिया। सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इस्तांबुल को फतह करने के बाद
बड़ी बड़ी मसाजिद बनवाई जो कि आज तक मौजूद हैं। सुल्तान के बारे में एक मशहूर वाक़या भी है कि जब उन्होंने इस्तांबुल को फ़तह किया तो फिर उन्होंने मसाजिद बनानी शुरू की, लेकिन एक मस्जिद ऐसी भी बनानी थी कि दुनिया में याद रहे, और इस मस्जिद के लिए एक बेहतरीन इंजीनियर को बुलाया गया। इंजीनियर ने मस्जिद का एक खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाकर सुल्तान के सामने पेश किया, जो सुल्तान को बहुत पसंद आया और बाद में काम शुरू किया। लेकिन इंजीनियर ने मस्जिद की दीवारें बहुत कमज़ोर बनाई और कई गलतियां की, जैसा कि चोरी वगैरह भी की, जिसकी वजह से सुल्तान ने उसके हाथ काटने का हुक्म दिया और इस इंजीनियर का हाथ काट दिया गया। बाद में वही इंजीनियर जाकर काजी के पास अपना कटा हुआ हाथ लेकर पेश हो गया और इंसाफ का तलबगार हुआ। काजी साहब ने सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को बुलाया और कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। सुल्तान ने सारा माजरा बयान किया, लेकिन सुल्तान ने कहा कि मैंने वाकई जुर्म किया है, आप जो फैसला सुनाएंगे मैं तैयार हूँ। इस पर इंजीनियर जो कि ईसाई था वो ये देखकर हैरान था कि एक अजीम फ़ातिह एक आम इंजीनियर के लिए यहाँ आकर एक बड़ा काम किया है, और फिर ख़ुद को गुनाहगार भी ठहरा दिया। और फिर काजी ने सुल्तान के हाथ काटने का हुक्म भी दे दिया, जो कि सुल्तान ने कबूल भी कर लिया, जिस पर वो ईसाई इंजीनियर मुसलमान हो गया। तो नाज़रीन इकराम, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की पेशीन गोई पूरी करते हुए कुस्तुनतुनिया यानी आज के मौजूदा इस्तांबुल को फ़तह किया, जो कि उस वक़्त का सबसे मुश्किल तरीन शहर था, और 24 मुख्तलिफ़ औक़ात में इस शहर पर हमले किए थे मुख्तलिफ़ अफ़वाज ने, लेकिन इस शहर को कोई मुसलमान भी फ़तह ना कर सका था। और ये फ़तह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत की रोशनी में सुल्तान मोहम्मद के नाम लिखी हुई थी, और वो उसी का मुक़द्दर था। उसी फ़तह की निस्बत से सुल्तान मोहम्मद का नाम सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह कहलाने लगा, और आज तक यूरोप के जितने भी ममालिक हैं वो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के नाम से आज भी लरज़ते हैं।